Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Class 8. Dear students, I hope you will have completed the exercise of unit number 6 into your notebook. Today we are going to start unit number 7. The name of the unit is The Handicrafts of Pakistan. Pakistan की दस्तकारियाँ. Today is our lecture number 1. Dear students, in this lesson we will study about the different handicrafts belonging to different regions of our beloved country, Pakistan. Let me first explain you what is the handicraft. Handicraft can be described as a wide variety of types of work where useful and decorative objects are made completely by hand or by simple tools. So let's start our lesson. Our beautiful country Pakistan is a land of colors and rich culture. हमारा खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान रंगों और सकाफ़त और बेहतरीन सकाफ़त की सरज़मीन है. पाकिस्तान हैज़ इनहेरिटेड अ रिच कल्चरल हेरिटेज फ्राम इट्स हिस्ट्री. पाकिस्तान को अपनी तारीख़ से आला सकाफ़ती वर्सा मिरास में मिला, विच इज़ एज़ ओल्ड एज़ 7,000 to 9,000 ईयर्स ओल्ड, और इसकी तारीख़ तकरीबन 7,000 से 9,000 साल कदीम है. The imprints left by successive civilizations have left a rich heritage of handicrafts. मुतवातिर तहज़ीब की छोड़ी हुई यादों में एक यादगार चीज़ जो दस्तकारी की अच्छी सकाफ़त है. The different regions with wide variety of traditions and culture, dialects, folklore, music, dresses and costumes have much to offer to any connoisseurs of handicrafts. मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रवायतों और सकाफ़त, मकामी ज़बान, लोकगीत, मौसीकी, लिबास के बहुत सी अक़साम हैं जो दस्तकारी के माहिर या साहिब शनास को बहुत कुछ पेश करती हैं. Each region has its own set of handicrafts. हर इलाके की दस्तकारी का अपना सेट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुल्तान, बहावलपुर एंड हाला आर फेमस फॉर द ब्लू पोट्री मेड ऑफ अ स्पेशल क्ले फाउंड इन दीज एरियाज़. मिसाल के तौर पर मुल्तान, बहावलपुर और हाला इस इलाके में पाए जाने वाले ख़ास मिट्टी से बनाए गए नीले बर्तनों के लिए मशहूर हैं. These are rubbed by the inherited skills of artisans into paper-thin pottery, noted for its elegance, delicacy of design, and decorative patterns painted thereon. ये कारीगरों को वर्षे में मिली महारत से कागज़ जैसे पतले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जो अपना डिज़ाइन में लताफत, नफासत और इस पर नक्श करदा सजावटी नमूनों के लिए मशहूर हैं. Students, here you can see the famous handicrafts of the Multan, Bahawalpur and Hala. These are the blue pottery made of a special clay that is found in that areas. Here you can see them in these pictures. Let's move on. Similarly, इसी तरह brassware handicrafts can still be found displaying mastercraft of the artisans. इसी तरह दस्तकारी पीतल के बर्तन आज भी कारीगरों के फ़नपारों की सूरत में मौजूद हैं. They make decorative plates, vases, bowls and similar other things in exquisite designs reminiscent of the great Mughal period. वो सजावटी प्लेटें, मर्तबान, तश्तरी और इस जैसे नफीस डिज़ाइन में अशिया बनाते हैं जो अजीम मुग़ल दौर की यादगार हैं. In Peshawar में brass work is done on many things like household utensils of daily use to decoration pieces. इसी तरह पेशावर में पीतल का काम कई चीज़ों पर किया जाता है जैसे रोज़मर्रा इस्तेमाल के घरेलू बर्तन और सजावटी अशिया. Students, in this picture you can see the special handicraft of Peshawar, that is the brassware. These are the utensils made of brass. You can see them in these pictures. Let's move on. Likewise, Chiniot and areas adjacent to Kashmir are famous for the exquisite carving in wood and woodcrafts inlaid with ivory.
जैसे चिन्नियोट और कश्मीर से मुल्हिका इलाके लकड़ी पर नफीस कंदाकारी या मुजस्मा साजी और मोती जोड़े हुए लकड़ी का सामान विच आर हाईली प्राइज्ड बाय टूरिस्ट। जैसे टूरिस्ट जो हैं या सयाह जो हैं, जो सैर के लिए आने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सराहते हैं या पसंद किए जाते हैं। कार्विंग इन आइवरी इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड आर्ट रिक्वायरिंग अ हाई degree of skill and patient work on the part of the artisans। हाथी दांत में कंदाकारी बहुत ही ख़ुसूसी फ़न है जिसे कारीगरों की तरफ से बहुत ज़्यादा महारत और सब्र की ज़रूरत होती है। कैस्केट विद डेलिकेट लेस वर्क आर हाईली प्राइज्ड। नरम नफीस फीते से बनाए गए जेवरात के डब्बे बहुत सराहे जाते हैं। The present artisans have inherited the skill from generations going far back into the past। मौजूदा कारीगरों ने माजी में गुजरे हुए आबाओ अजदाद से ये महारत वर्से में पाई। The carved wooden furniture in wide range is exported in huge quantities because of its richness in design and high quality wood। नक्श नगारी किया हुआ फर्नीचर अपनी उम्दा किस्म की लकड़ी और बेहतरीन डिज़ाइन की वजह से बड़े पैमाने पर बरामद किया जाता है। स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ कार्विंग इन वुड्स। यू कैन सी इट इन दीज पिक्चर्स। लेट्स मूव ऑन। Moreover, can basket work includes stripped can woven by skilled craftsmen to produce articles of utility। ताहम बैत की छड़ी से बनी हुई टोकरी का काम कुतरी हुई बैत से लकड़ी के काम के माहिर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया बनाने के लिए जोड़ते हैं। सच एज़ बास्केट्स, जैसे कि बास्केट्स, हैंड बैग्स, दस्ती बैग, लेडीज़ बैग्स, ख़वातीन के बैग्स, मैट्स और चटाइयाँ वगैरह। In elegant designs decorated with floral patterns which make these articles coveted owing to their exquisite craftsmanship। नफीस डिज़ाइन में जो फूल के पत्तों वाले नमूनों से सजाए हुए होते हैं, इनके कारीगरों की नफासत को मद्देनज़र रखकर इन अशिया की ख्वाहिश पैदा होती है। In the northern areas and hill stations, शमाली इलाका जात और पहाड़ी इलाकों में the cans and the handicrafts made of can are very famous among the tourists and holiday makers। बैद और लाठी से बनी हुई दस्तकारियाँ सयाहों और छुट्टियाँ मनाने वालों में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। In these pictures you can see the can work, handicraft of can basket work that is woven with the strips of the can। In these pictures you can see some bags, some handbags and some baskets। Embroidery is one of the most sought out handicrafts of Pakistan the world over। पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान की कशीदाकारी बहुत ज़्यादा सराही जाती है या चाही जाती है, पसंद की जाती है। सवात इज़ वेल नोन फॉर थ्रेड एम्ब्रॉयड्री। सवात धागा की कशीदाकारी के लिए बहुत मशहूर है। वेयर एज इन टीची खान मिरर वर्क इज़ डन ऑन क्लोथ्स। जबकि डेरा गाजी खान में कपड़ों पर सितारे या शीशे का काम किया जाता है। वर्क्स ऑफ दिस टाइप्स आर कॉल्ड कढ़ाई। इस तरह के काम कढ़ाई कहलाते हैं। चित्राली पट्टी दैट इज़ वोवन ऑन हैंडलूम्स एंड कढ़ाई टन इन चित्राली चोगा इज़ वेरी फेमस। चित्राली पट्टी जो कि हैंडलूम्स यानी कि खड्डे वगैरह पर तैयार की जाते हैं या बुने जाते हैं, और इसी तरह चित्राली चौके पर जो कढ़ाई की जाती है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इन दीज पिक्चर्स यू कैन सी दीज हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ चित्राल एंड सवात एंड डेरा गाजी खान। यू कैन सी सम मिरर वर्क एज वेल। Needlework in Balochistan is of various designs
बलूचिस्तान में सुई से किया गया काम मुख्तलिफ डिज़ाइनों में एंड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स विच वेरी फ्राम प्लेस टू प्लेस, और इसी तरह फ़नून कशीदाकारी जो जगह ब जगह बदलता रहता है। डिफरेंट एरियाज़ ऑफ बलूचिस्तान आर नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव डिज़ाइंस। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके अपने नुमायाँ डिज़ाइनों के लिए बहुत मशहूर हैं। ढेरा भुगती इज़ फेमस फॉर कोचिक स्टिचिंग पैटर्न। ढेरा भुगती अपने ख़ास कोचिक सिलाई के नमूनों के लिए मशहूर हैं। द कोचिक पैटर्न आई विल शो यू सून इन द नेक्स्ट स्लाइड। इन द पिक्चर्स आई विल show you the कोचिक स्टिचिंग पैटर्न which is embroidered on shawls and shirts for the women, जो कि औरतों की कमीज़ों और शॉल वगैरह दुपट्टों वगैरह पर किया जाता है काम। it is famous and popular everywhere in Pakistan। ये पाकिस्तान में हर जगह बहुत मशहूर और हर दिल अजीज़ है। Students, these are the embroidery that is known as the Kochik pattern. Especially on the blue shirt, you can see it. These patterns are called Kochik patterns, which is famous embroidery of Balochistan, and this is called needlework because this is done with the help of the needles. So we have completed today's lecture, and there are the difficult words with their Urdu and English meanings from these passages. At the end of today's lecture, you should revise all these passages with their Urdu translation and keep your focus on the pictures to understand this all text very well, and write the meanings of difficult words that have been provided with this lecture into your notebooks. I hope you got it. Take care of yourself and your family. Have a nice day. Allah Hafiz. Goodbye.